Hello everyone. This side Poonam Grover from St. Andrews College of Technology and Management, Farooq Nagar Gurugram. I'm a faculty member in Electronics and Telecommunication Department. Today I'm giving the lecture on digital communication for ETC 6 semester students, and I have covered the various topics which are based on Unit 2, and it's lecture number 6. So in my today lecture, I have covered various topics, that is Nyquist criteria for distortionless baseband transmission. In that topic, we will explain how you can apply the Nyquist criteria for distortionless baseband transmission. But in some cases, that is, say you can say zero order ISI, or you can say zero ISC inter-symbol interference. So also you can notice the effect of ISI and how it is minimized with the help of your ideal Nyquist channel rays cosine spectrum. Clear? So we will come in that particular topic. We are doing some mathematical calculations, and according to that mathematical calculation, we are reduce the effect of your inter-symbol interference. So firstly, we know about I will discuss that ISI, that is stand for your inter-symbol interference in your previous lecture. That is a type of interference when two symbols are interference with each other. That is called your inter-symbol interference. And I will explain in the later part of the video what do you mean by ISI and how the effect will be noticed during the Nyquist criteria for distortional baseband transmission, and how it is minimized in case of your ideal Nyquist channel rays cosine spectrum. Clear? So I'll start my lecture with Nyquist criteria for distortionless baseband transmission. So firstly, you can start the topic of your Nyquist criteria baseband transmission. You are having the knowledge about your inter-symbol interference. Suppose we are giving at a channel, we are giving a two symbol. The first symbol will occurring in that particular instant, and the second symbol will be occurring in that particular instant. So in that case, your instant will be start from that peak point, but that will be start earlier. So that part will be interfaced with each other with the help of your two symbol transmission. So that is called your inter-symbol interference. Sometimes the inter-symbol interference is occur in your channel during the various, or you can say during the other you can say symbol which we can transmit in through one channel. So that is also effective for going your inter-symbol interference. Clear? So here we discuss the effect of your Nyquist criteria for distortional baseband transmission. We are giving the example of your PAM signal. You can say PAM modulations. Then how you can done the PAM modulation, the topic will be discussed by me in a previous lecture, but in today I'll details the one by one criteria, how you can done the PAM modulation, how you can demodulate the particular signals with the help of that particular blocks. So in which in PAM signals we are giving the input B of K in the form of bits like 1101 vagara vagara. Clear? And the PAM modulation apply your pulse amplitude modulation, and it convert the signal BK into AK with plus minus 1. से अगर आपने सपोज कीजिए कि आपने ये डाटा ट्रांसमिट किया था बीके बीके यानी कि आपका इनपुट डाटा बीके है जो कि बिट्स की फॉर्म में है, और पैम के बाद जो आपको सिग्नल मिला है इन द फॉर्म ऑफ एके. क्लियर? जो आपको एके मिल रहा है वो क्या मिलेगा, अगर जीरो होगा जो भी बिट है इनपुट पे, मान लो ये इनपुट पे बिट आपके प्रेजेंट है, जब इन बिट्स के ऊपर आपने पैम मॉड्यूलेशन अप्लाई की तो यहाँ पे जो पैम मॉड्यूलेशन की आउटपुट एके है वो आपको क्या मिलेगी, जीरो के कोरस्पॉन्डिंग वो -1 जनरेट करेगा और 1 की कोरस्पॉन्डिंग वो +1 जनरेट करेगा, एंड सो ऑन. 1 for +1, 0 for -1. So it will be generate a plus and -1 signal as per your desired input signal, and that signal will be represented by your a k. Clear? और in time domain analysis अगर आप उसी a k का टाइम डोमेन एनालिसिस के अकॉर्डिंग फंक्शन निकालें तो वो आपका होगा समीशन ऑफ a del into t minus k टीबी. इट मीन्स वो आपका जो लाइक बीके से जब आपने पैम मोडुलेशन की हेल्प से उस सिग्नल को एके में कन्वर्ट किया तो एके सिग्नल जो है लाइक अगर उस एके सिग्नल that will be multiply with your impulse function, that is del of t minus ktb. Clear?
देन आपने किया, जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको कि अगर आपने जो सिग्नल ट्रांसमिट किया, मैंने उसके एक लेवल ले लिया, जैसे मान लो 0 पे हमें 1 है, -1 पे 1 है, -2 पे, इस तरफ पोजिटिव साइड में वही लेवल ले लिया, आपका सिग्नल ये वाला था बिट, आपने उसको पैम की हेल्प से AK में कन्वर्ट किया, तो वो मिला आपको 0 के कोरस्पॉन्डिंग -1 और 1 के कोरस्पॉन्डिंग +1 एंड सो ऑन। क्लियर? उसके बाद आपने उस सिग्नल को क्या किया है, AK, यानी कि जब उसकी टाइम डोमेन एनालिसिस की, तो जो आपका AK कोफिशिएंट है सिग्नल का, वो आपका इम्पल्स फंक्शन से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, वो लाइक डाटा बिट TB के डिफरेंस से क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है। के उसकी वैल्यू है, माने K इक्वल टू TB, 2TB, 3TB एंड सो ऑन। क्लियर? तो हम हर एक इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो उसने क्या किया, अगर आपने देखा जाए कि अब देखो उसकी 0 पे जो वैल्यू है उस सिग्नल की +1 है, तो उसको मैंने +1 लिखा। फिर उसके बाद 1 पे उसकी वैल्यू -1 है, 1 पे -1 हो गई। देन 2 पे वैल्यू उसकी +1 है, तो अगेन +1 2 पे, और 3 पे उसकी वैल्यू क्या है, -1 है। तो इस तरह हमने उस सिग्नल को क्या किया कि विद द हेल्प ऑफ योर इम्पल्स फंक्शन यू कैन रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर सिग्नल इन दैट टाइप ऑफ सिग्नल। क्लियर? सो इस फंक्शन को देखने पे आपने क्या किया, इस पूरे फंक्शन को आपने सिंपली वेव्स की फॉर्म में, प्लस माइनस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। पैम की आउटपुट पे जब आपको +-1 में जो सीक्वेंस मिला है, उसको आपने सीक्वेंस की डायग्राम की फॉर्म में शो किया होगा यहाँ पे। क्लियर है? अब ये आपका क्या मिला है यहाँ पे, AKI वाला एक्चुअली। क्लियर? अब इस AK की जब उसने टाइम डोमेन एनालिसिस कर रहा है, तो जो आपका AK है, एज पर योर टाइम डोमेन एनालिसिस दैट विल बी चेंज, और यू कैन से मल्टीप्लाई विद योर इम्पल्स फंक्शन। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे मान लो आपका डेल ऑफ टी, यानी कि अगर देखा जाए डेल ऑफ टी जो है आपका डेल ऑफ टी 0 माना जाएगा, जो कि 1 है, तो 1 इंटू डेल ऑफ टी हो गया। देन क्या है आपका, इस तरह वाले कोऑर्डिनेट लिया, 1 -1 इंटू में डेल ऑफ टी -TB। क्लियर? क्लियर? अगेन क्या होगा आपका, अगेन +1 है तो +1 डेल्टा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, डेल ऑफ टी -2TB है, सॉरी यू कैन राइट हियर 2TB। क्लियर? इस तरह आपने जो वैल्यूज थी उसको हर बार T माइनस के TB के डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया है, तो जो आपका एक कोफिशिएंट है दैट विल बी वैल्यू, दैट वैल्यू है। क्लियर? और डेल ऑफ T माइनस एट 0, एट 2TB, 3TB, एंड अकॉर्डिंग टू योर पॉजिटिव साइड एंड अकॉर्डिंग टू योर नेगेटिव साइड, अगेन यू कैन एक्सप्लेन दैट। तो आपने इस फंक्शन को इम्पल्स फंक्शन से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। इस फंक्शन को जो आपके आउटपुट की फॉर्म में मिला है पैम की, उस पैम फंक्शन को आपने क्या किया है, टाइम डोमेन एनालिसिस में चेंज करने के लिए इम्पल्स फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, जो कि आपका ये वाला हो। क्लियर? ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया है यहाँ पे, देन आप ये लिख रहे हो, एटी आपका क्या है, k इजकल टू माइनस यूनिटी ए के डेल ऑफ टी माइनस के TB। ठीक है, सो आफ्टर दिस फिल्टर कैन कन्वर्ट इनटू डिजायर्ड शेपिंग। अब उसके बाद क्या होगा, जो हमारा ये 80 यहाँ पे हमें मिला है, क्लियर, उस 80 को हम ट्रांसमिशन फिल्टर के थ्रू पास करेंगे, जिसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, GT है, और उसके आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, S ऑफ T मिलेगा। तो इस फिल्टर का काम क्या है, दैट प्रोवाइड द नेसेसरी शेप टू योर 80 सिग्नल, कि आपको जो 80 है उसकी इनपुट पे, उसको कौन सी शेप में आपको रिप्रेजेंट करना है, आइदर साइन वेव में, स्केयर वेव में, और सिंक फंक्शन में। क्लियर? विच विल बी डिजायर्ड एज पर योर एप्लीकेशन। क्लियर? तो आप किसी भी फॉर्म में सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एट द आउटपुट ऑफ योर, यू कैन से ट्रांसमिशन फिल्टर, whose transfer function is, you can say, ZT, that will be shown by that diagram. Clear? Again you can study, आपको अब आप जो ST है, वो आपको ST क्या मिल रहा है, ST की इनपुट पे ST उसकी आउटपुट आ रही है, उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, GT है, इनपुट पे क्या है आपका 80 है, तो आपका क्या होगा, ST क्या होगा, 80 इंटू में GT। तो आपका यहाँ पे ST क्या हुआ, दैट इज ST इज इक्वल टू 80 इंटू में ZT। क्लियर? वही सेम, लेकिन जो 80 है वो डेल ऑफ टी फंक्शन से क्या है, आपका मल्टीप्लाई है, इसी से आपका J फंक्शन भी क्या हो जाएगा, T माइनस के TB के डिफरेंस से शो किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 80 का A ऑफ K, G अगेन इम्पल्स फंक्शन से मल्टीप्लाई हुआ, देन G T माइनस के TB। क्लियर? अब उसके बाद आपको इसकी आउटपुट पे, यानी कि इसका मतलब क्या है फिल्टर का, कि यहाँ पे जो 80 प्रेजेंट है उसको चैनल पे देने से पहले उसके अकॉर्डिंग शेप बना के उसको अप्लाई करना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ योर
ट्रांसमिशन फिल्टर, यानी कि जिस तरह की इनपुट इसे चाहिए और उसको वो आगे वर्क करवा सके उस तरह की इनपुट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ क्या लगा हुआ आपका ट्रांसमिशन फिल्टर। अब चैनल के आउटपुट पे क्या मिल रहा है हमें एक्स ऑफ टी, उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है जेड एच टी, इनपुट पे क्या है एस टी है, तो क्या होगा ये एच टी इंटू में एस टी इज इक्वल टू एक्स नोट टी। क्लियर, तो ये क्या हुआ आपका यहाँ पे सेम एस टी इंटू में एस टी इज इक्वल टू एक्स नोट टी। लेकिन हमें पता है कि हमारा एक्स ऑफ टी क्या है, एक्स ऑफ टी एक्चुअली में क्या है, that is x naught t plus में some noise, we can say white Gaussian noise, wt is represented by your white Gaussian noise. So see in your figure, here you mention x of t, clear, that will be mixed before transmission। आप ट्रांसमिशन जब इसमें करते हो आपके आउटपुट सिग्नल में कुछ नॉइज मिक्स हो जाती है, तो आपको यहाँ पे रिसीवर की इनपुट क्या बनेगी x of t, so that input will be equal to x naught t plus में wt। clear, so here we also show x naught t plus में wt, but we know in your previous calculation your x naught t is equal to st into में st plus में wt, and you apply again your transfer function facility, then you can apply, you can put the value from your previous analysis, that is your st will be equal to, आपका st किसकी इक्वल निकाला है ak j tk minus tb, then you can also present ak j t minus tb into में st plus में wt। clear, again you getting the output yt after the receiver filter, here you use the transmission filter and here you use the receiver filter, तो yt आपको क्या मिल रहा है, yt is equal to again yt is equal to xt into में ct, उसकी इनपुट पे xt है, आउटपुट पे क्या मिल रहा है, और उस रिसीवर फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन क्या है ct है, लेकिन xt को अभी आपने रिप्रेजेंट किया है वो आपका क्या है x नोट t प्लस में wt, एंड विच इज अ फंक्शन ऑफ st प्लस में wt, देन वही अगेन st इनटू में ये जो दोनों के साथ कन्वॉल्व करेगा, यानी कि इस फंक्शन की अगर बाहर में मैं सी ऑफ टी डाल दूं, तो मैंने एक्स ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पुट की है, तो ये वैल्यू यहाँ से आपको कोरिलेशन को सोल्व करने से आ जाएगी। वही सेम आपने फिर एस टी की वैल्यू यहाँ पुट की, इंटू में एस टी इंटू में सी टी डब्ल्यू टी इंटू में सी ऑफ टी, यू कैन से कन्वॉल्व विद दैट सिंबल शो योर कन्वोल्यूशन। क्लियर, again you can done the sampling, so sampling will be done as equal to ITB, so आपने अब उसी फंक्शन की वैल्यू TB यानी कि बिट ड्यूरेशन पे निकालनी है, तो y is equal to ITB क्या होगा आपका AK JT minus KTB STCT, इसकी वैल्यू क्या आएगी I is equal to sorry T is equal to ITB and WT into CT, that is also T is equal to ITB। क्लियर, तो हमने क्या किया लाइक इस फंक्शन के अंदर आपकी अब ये जो पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो एक्चुअली जो है वो आपका पूरा फंक्शन है, इस पार्ट के अंदर जो नॉइज आ रही है उसको आपने क्या कर दिया है रिमूव कर दिया है। क्लियर, तो अगर आप इसे रिमूव करेंगे तो y इज इक्वल टू ITB भी क्या होगा आपका AK JT माइनस KTB STCT प्लस में WT इंटू में CT, दैट इज इक्वल टू योर नॉइज फंक्शन। क्लियर, तो इसमें अब उसने क्या किया है यहाँ पे आप इस पूरे टर्म के अलावा ओनली दिस पार्ट को देखिए जो आधे वाला है, क्योंकि नॉइज को तो हमने लेना ही नहीं है कंसिडरेशन के अंदर, क्योंकि नॉइज आनी नहीं चाहिए चैनल के अंदर, तो नॉइज को हम यहाँ से क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे। अगर मैं नॉइज को यहाँ पे रिमूव करती हूँ तो ओनली इस पार्ट को देखिए, ओनली दैट पार्ट विल बी कंसिडर, तो मैंने इस पार्ट को देखा तो दैट इज GT माइनस TB H of T C of T। क्लियर, तो बिफोर स्टार्टिंग विद योर फाइनल कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू दैट equation we only fetch that particular equation, that is GTK minus KTB into में HT into में CT, तो इस पे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, तो G of T जो है वो आपका क्या चीज में चेंज हो जाएगा G of F में e raised to power minus J2 pi F KTB, then HF into में CF e raised to power J2 pi F into में DF। क्लियर, तो यहाँ से क्या हुआ GF HF एंड CF तीन ट्रांसफर फंक्शन आ गए, इनटू में एक टर्म माइनस की और एक विदाउट माइनस की, तो जब इसको इकट्ठा करेंगे तो वो किस फॉर्म में लिखी जाएगी AJ2 pi 5 F बाहर आ जाएगा T माइनस KTB इनटू में DF। clear, but we know very well as we discussed in my previous video that GF HF if three of the transfer function, किस किस के ट्रांसफर फंक्शन है ध्यान से देखिए फिगर में, GF CF and your HF, GF CF and your HF, so GF is here, HF is here and CF is here, it means GF and CF, that is transfer function of your transmission and receiver filter, and HF is called your channel transfer function।
क्लियर। सो इन विच लाइक वो आपका क्या है, चैनल ट्रांसफर फंक्शन है। तो आपके जो लाइक यहाँ पे हैं, आपने जीएफ और सीएफ ट्रांसफर फंक्शन को कंट्रोल करना है रादर देन योर एचएफ। क्लियर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपके फिल्टर के हैं। तो फिल्टर की अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो आपको जो लास्ट में आउटपुट मिलेगी वो विदाउट नॉइज या विदाउट इंटरसिंबल इंटरफेरेंस मिलेगी। तो हमने सिंपली फिल्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को रिमूव कर यानी कि अरेंज करना है, सॉरी कंट्रोल करना है रादर देन योर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ योर चैनल। क्लियर। सो अगर तीनों ट्रांसफॉर्मेशन को आप मल्टीप्लाई करते हो दैट इज इक्वल टू योर म्यू पी एफ। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूले को, इस पूरे को मैंने म्यू पी एफ से चेंज कर दिया। क्लियर। पी एफ e पावर j 2 pi f के टी माइनस के टी। क्लियर। तो यहाँ उसने क्या किया, वही सेम पी ऑफ टी से अप्लाई किया, देन क्या हुआ उसका j 2 pi f t इंटू में डी एफ। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है कि एक्चुअल में अगर ये देखा जाए तो ये आपको किसकी, टेकिंग योर इनवर्स ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही सेम माइनस इनफिनिटी पीटी किस में चेंज हो जाएगा, यानी कि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका टाइम डोमेन में है, अगर उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करना है तो आपको उसको इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। तो पीटी का क्या हो जाएगा, पी एफ ई रेज़ टू पावर जे 2 पाई एफ टी माइनस में के टी बी, क्योंकि आप लाइक बिट ड्यूरेशन पे इसकी सैम्पलिंग कर रहे हो तो दैट इज टी माइनस के टी बी हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। और अभी आप इस आपने क्या लिखा है, इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे फॉर्मूले को लाइक जो आपने निकाला है दैट इज इक्वल टू योर p माइनस टी के टी बी। क्लियर। तो दैट इज आल्सो इक्वल टू योर म्यू p टी माइनस के टी बी, यानी कि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, म्यू p टी माइनस के टी बी। क्लियर। हियर योर म्यू शो योर एक्स्ट्रा पैरामीटर which we can add at the final stage of your distortional transmitter। तो म्यू से सिंपली कुछ नहीं करना था, म्यू एक स्केलिंग फैक्टर है, ताकि अगर आपका गेन किसी चीज में कम या ज्यादा होता है तो उसको हम स्केल्स कर सकें, उसको एक लेवल तक मेंटेन कर सकें, दैट इज कॉल्ड स्केलिंग फैक्टर। क्लियर। सो हमने लाइक आपने क्या किया, आपने जो वैल्यू यहाँ से निकाली थी उस वैल्यू को, ये वैल्यू किसकी आई है, पी टी के माइनस के टी बी की। क्लियर। तो आपने अपने सिंपली इसी फॉर्मूले में इस वैल्यू को इक्वेट किया है। जब मैं इस वैल्यू को इक्वेट करती हूँ तो क्या होगा, आपका म्यू बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, ए ऑफ के पी टी माइनस के टी बी, क्योंकि दैट फंक्शन भी रिटर्न एज पी टी के टी माइनस टी बी प्लस में नॉइज। यानी कि हमने यहाँ से इस पैरामीटर की वैल्यू को बोला है दैट इज इक्वल टू पी टी के टी, पी टी माइनस के टी बी। क्लियर। तो हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला था जहाँ पे मैंने बोला था इसकी जगह अब मैं वो वैल्यू इक्वेट करवाऊंगी, बाकी वैसे का वैसे रहेगा। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू निकाली है आपने जी टी माइनस के जी टी माइनस टी बी, उसकी वैल्यू आपकी क्या निकली है, दैट इज इक्वल टू योर पी टी के टी बी, बाकी सारा वैसे का वैसा, म्यू बाहर आ जाएगा आपका प्लस में एन ऑफ टी। क्लियर, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हम ये मान के चलें कि अगर ये जो तीनों ट्रांसफॉर्मेशन है अगर वो मल्टीप्लाई में होते हैं दैट इज इक्वल टू योर म्यू ऑफ पीटी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने अब फंक्शन को क्या करना है, नॉर्मलाइज वैल्यू पे लेके आना है। क्लियर, ताकि नॉर्मलाइज वैल्यू पे कोई भी जो लाइक ट्रांसफर फंक्शन ऑफ योर फिल्टर दैट विल बी शो एज एन, you can say normalized value, you can say ideal value of that particular filter। clear। so हम क्या करेंगे कि आपने लाइक आपने अभी बोला है कि आपका अगर तीनों ट्रांसफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज इक्वल टू योर म्यू पी एफ। क्लियर। तो अभी हमने जो फाइनल इक्वेशन पीछे लिखी है दैट इज वाई टी इज इक्वल टू म्यू ए के पी टी माइनस के टी बी प्लस में एन ऑफ टी। क्लियर। तो हमने इस इक्वेशन को सेम का सेम यहीं पे दोबारा यूज किया है, लेकिन सिंपली क्या किया है हमने, सैम्पलिंग की है एट टी आई इज इक्वल टू आई टी पी पे। ठीक है। तो हमारा जहाँ लाइक टी वैल्यू है उसको हमने आई टी बी से रिप्लेस किया। क्लियर। तो देखिए ध्यान से, म्यू का म्यू, म्यू क्या म्यू ए के पी टी को आई टी बी से, के टी बी एन टी को आई टी बी से। क्लियर। तो यहाँ से आपने उस वैल्यू को क्या कर दिया है, इक्वेट कर दिया है। अगेन क्या किया आपने, अगर देखा जाए तो आप इसमें से टीबी बाहर कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, आई माइनस के प्लस ऑफ एन ऑफ टी आई। क्लियर। तो ये यहाँ ये कहना चाहता है कि अगर जैसे मान लो आपने ये आपके दोनों ट्रांसमिटर एंटीना है, ठीक है, और ये वाला कौन सा है, रिसीवर एंटीना। क्लियर। सो क्या होगा कि आपने ट्रांसमीटर से चैनल 1 के थ्रू रिसीवर एंटीना को सिग्नल भेजा, एट द सेम टाइम आपने चैनल 2 से रिसीवर एंटीना 2 को क्या भेजा है, सिग्नल भेजा है। तो दोनों सिग्नल क्या हो जाएंगे आपस में, लाइक
लाइक दोनों सिग्नल आपस में मिक्स होंगे, तो दैट विल बी कॉज योर इंटर सिंबल इंटरफेरेंस. सो एट लास्ट वी कैन से वी कंट्रोल द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ योर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. इट प्रोवाइड्स, अगर हम दोनों को लाइक जो हमने ट्रांसमीटर पे फिल्टर यूज किया है और जो हमने रिसीवर पे फिल्टर यूज किया है, मैंने पैम जब डिस्कस किया था तो आपको बताया था बोथ द फिल्टर आर सिंक्रोनाइज विद ईच अदर, दोनों सिंक्रोनाइजेशन में होने चाहिए. दैट विल बी अटेन अ नॉर्मलाइज्ड वैल्यू. इट्स वैल्यू इज इक्वल टू P0 इज इक्वल टू क्या आती है आपकी 1 आती है. क्लियर. तो उस पे वो आपका आइडियल रिस्पॉन्स की तरह सिग्नल, यानी कि आपके लो पास फिल्टर की तरह आपका रिस्पॉन्स शो करेगा कोई भी फिल्टर. तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि जो सैंपल है हमने कब कब लेने हैं, एट t 0 पे, t tb पे, t2 2tb पे, t3 3tb पे. क्लियर. तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली आपने जो फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले में आपने क्या अप्लाई किया है, म्यू ऑफ, जब इसको आप आई की फॉर्म में ट्रांसमिशन करोगे तो ये ए के आई आई की फॉर्म में बाहर आ जाएगा. इट मीन म्यू ऑफ ए आई प्लस में म्यू इस टर्म के बाहर आ जाएगा ए के. नेक्स्ट क्या लिखिए आपने, दैट इज पी आई माइनस के इंटू में टीबी, पी आई माइनस के इंटू में टीबी प्लस में एन टी आई. तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ योर आई एट ट्रांसमिशन बिट. Clear. That is show your ideal response of any low pass filter. Clear. So here the I is equal to क्या होगा आपका K होगा. तो अगर मैं अपने इस फॉर्मूले में लाइक जो आपने पहले बनाया है, अगर इस फॉर्मूले में मैंने I की वैल्यू K की इक्वल ली तो ये फंक्शन पूरा जीरो हो जाएगा. ओनली क्या बचेगा, म्यू इंटू में ए के. तो वही तो लिखा हुआ है मैंने, पहला फंक्शन क्या बना, म्यू इंटू में ए के. के को आपने किससे शो किया, के इज इक्वल टू आई से, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आई से, आई में चेंज हो जाएगा. अगली बार अगले टर्म में आपने जब के की वैल्यू नॉट इक्वल टू आएगी तो आपका वही फंक्शन वैसे का वैसे रहेगा, ओनली जो स्केलिंग फैक्टर है वो बाहर आ जाएगा. क्लियर. तो आपने क्या किया, प्लस में एन टी आई. अब जो ये वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ ऑल अदर ट्रांसमिटेड बिट, and that part is called your noise. Clear. So residual effect due to the occurrence of pulses before and after sampling instant ti is called isi. Clear. So in the absence of your isi and noise, अगर अब आपने पूरे एनालिसिस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है एज पर योर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर डिस्टॉर्शन एंड बेसबैंड ट्रांसमिशन, तो इसमें आपकी जो फाइनल टर्म आएगी आफ्टर अप्लाइंग योर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया ऑन बेसबैंड ट्रांसमिशन, वो आपको तीन इफेक्ट की फॉर्म में मिलेगी. जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड योर फंडामेंटल which denote the contribution of your IA transmission bit, or you can say ideal response of an LPF filter here. Clear. Another part is you can say when k is not equal to I, यानी कि k जब I के इक्वल नहीं है. Clear. तो तब क्या करेगा, तब वो क्या करेगा, रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांसमिटेड बिट, यानी कि जो जितनी भी ट्रांसमिटेड बिट उस चैनल में जा रही हैं उन सभी के रेजिडुअल इफेक्ट इससे शो होंगे. तो इट मींस दैट पार्ट विल बी शो योर इंटर सिंबल इंटरफेरेंस. प्लस में नॉइज, नॉइज क्या होगी आपकी, कोई भी अनवांटेड डिस्टर्बेंस, तो जो भी सिग्नल मिला है वो आपको कॉन्टामिनेटेड विद आईएसआई एंड प्लस किसके को मिलेगा, नॉइज के साथ मिलेगा. क्लियर. तो अगर मैं अपने चैनल में आईएसआई और नॉइज का इफेक्ट को ओवरकेम कर दूं तो हमें लास्ट में ओनली आउटपुट पे क्या मिलेगा, म्यू ऑफ एआई. इट मींस दैट इज डिस्टॉर्शन लेस without noise and SI, so that is called distortionless Nyquist criteria for baseband transmission. Clear. So अब हम इसे कैसे रिमूव करेंगे, that will be discussed in my later part of the video. Next we discuss the ideal condition for the IA transmitted bit to be decoded correctly. वही सेम कि अगर हम इस पूरी इक्वेशन में से आपका ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड योर IA ट्रांसमिशन ऑफ बिट कंट्रीब्यूशन, और दैट पार्ट विल बी नोट योर रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ ऑल अदर ट्रांसमिटेड बिट. जिनकी जब सिंबल अदर सिंबल्स भी आपके चैनल में जा रहे होते हैं तो उनका भी रेजिडुअल इफेक्ट के कारण उनमें से ISI इंटर सिंबल इंटरफेरेंस हो जाती है या प्लस में कुछ नॉइज आती है. तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड योर फंडामेंटल. क्लियर. अगर हम अपने चैनल को ISI और नॉइज के प्रति क्या बना लें, लाइक इंडिपेंडेंट बना दें, तो हमें ओनली क्या मिलेगा, ये विदाउट डिस्टॉर्शन एंड विदाउट नॉइज सिग्नल हमें प्योर सिग्नल मिलेगा आपका. तो हमने क्या किया, नाइक्विस्ट आइडियल कंडीशन ऑफ, तो उसने क्या किया, हम ये मान के चलते हैं हमने अब सैम्पलिंग की है तो यहाँ मैं लिख रही थी पी टी माइनस के टी बी. तो सैम्पलिंग एज पर योर आई बिट दैट इज कॉल्ड योर टी को आपने आई टी बी से रिप्लेस किया माइनस ऑफ के टी बी, और जिसकी वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू के है, अगर 0 है तो आई इज नॉट इक्वल टू के. सो टू बी अ फ्री फ्रॉम ISI. क्लियर. देन क्या किया उसने, हमें ये भी पता है कि अगर हमने
डिस्टोशनलेस और नॉइजलेस, यानी कि लाइक चैनल क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, y ऑफ ti, यानी कि जो आपने आउटपुट निकाली है वो आपकी फर्स्ट पार्ट की, यानी कि फंडामेंटल पार्ट की इक्वल होनी चाहिए, म्यू ऑफ ai। क्लियर? सो हमें, अगर हमने इस पार्ट में से क्लास में जो दो फैक्टर आ रहे थे आपके, कौन कौन से आ रहे थे, ISI प्लस में नॉइज, आपने इन दोनों को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो हमें यहाँ पे जो आउटपुट पे मिलेगा, दैट कॉल्ड एज फॉर डिस्टोर्शनलेस ट्रांसमिशन, यानी कि हमें उसमें कोई नॉइज नहीं मिलेगी और प्लस में हमें ना कोई इंटरफेरेंस मिली है, सो दैट इज कॉल्ड योर जीरो ISI। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, यू कैन एक्सप्लेन द जीरो inter symbol interference in case of your distortionless baseband transmission। क्लियर? या तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, जीरो मतलब कि हम उसके आइडियल कंडीशन के अंदर ट्रांसमिशन को अचीव कर रहे हैं। क्लियर? सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ ISI, द डिजाइनिंग ऑफ द ट्रांसमिशन फिल्टर एंड द रिसीव फिल्टर शुड बी प्रॉपर बेस्ड अपॉन योर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। So in order to minimize the effect of ISI, the designing of transmission filter and the receive filter should be on proper based upon your Nyquist criteria. It means whenever you control the transfer function of your transmission filter and your receiver filter, you can achieve your channel with distortionless and your zero ISI effect. Clear? So again, you can come with your basic topic, that is you can write your final term, that is v is equal to ti, and so हमने इसमें, हमने जो लास्ट टर्म हमने निकाली है वही सेम फॉर्म में मैंने वही चीज लिखी हुई है, लेकिन बस उसकी टर्म में मैंने जो नॉइज का पार्ट लिया तो उसको मैंने निगलेक्ट कर दिया। तो जब नॉइज निगलेक्ट होगी तो क्या होगा, उसके अंदर क्या बचेगा हमारा, यूर डन द ITB। आप क्या करोगे, वही सेम कि अगर मैं फर्स्ट लेती हूँ वैल्यू, क्लियर, तो फर्स्ट वैल्यू में आपने क्या किया है, म्यूजिकल टू ए आई, ठीक है। अगर P, आप ये बोल रहे हो कि P इज इक्वल टू आई टी पी इज इक्वल टू के टी पी, यानी कि जब I की वैल्यू के इक्वल है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, आपकी 1 आ रही है। क्लियर? तो जब यहाँ पे भी जब I की वैल्यू के इक्वल होगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी 1, लेकिन जब I इज नॉट इक्वल टू के है तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। क्लियर? तो उसने क्या किया, सिंपली कुछ नहीं किया, आप अपनी इक्वेशन के अंदर इस पूरे टर्म में इस फंक्शन को क्या बोल रहे थे, i इज इक्वल टू के, और इस टर्म में आपका i इज नॉट इक्वल टू के, लेकिन जब i इज इक्वल टू के है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, आपकी 1, विच स्टैंड फॉर योर नॉर्मलाइज्ड वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। क्लियर? लेकिन इस फंक्शन में क्या है, k इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू i है, तो दैट विल बी शो योर ISI इंटरफेरेंस इफेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे भी उसने सिंपली कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिंपली उसने उस पार्ट को लिखा है, यानी कि अगर आपने किसी फिल्टर को नॉर्मलाइजिंग करना है तो आपको i इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, k लेना पड़ेगा। अगर i इज इक्वल टू k होगा तो p की वैल्यू, p0 की वैल्यू क्या होगी, एज पर एनालिसिस जो मैंने पीछे प्रूव करके दिखाई है, तो वो आपकी हो जाएगी p0 इज इक्वल टू 1, दैट शो यूजर योर नॉर्मलाइजिंग फंक्शन। तो सिंपली उसने क्या किया है, i माइनस के इज इक्वल टू n में चेंज कर दिया। क्लियर? तो उससे क्या होगा कि i माइनस के इज इक्वल टू n। क्लियर? तो वही सेम चीज है, लाइक i माइनस के इज इक्वल टू क्या है, m है, तो i माइनस के इज इक्वल टू क्या हो गया आपका n। तो अगर आप n फंक्शन लिखते हो तो p ऑफ n क्या बन जाएगा, p ऑफ n टी बी इंटू में 1 माइनस n इज इक्वल टू 0, और यू कैन से 0 एट n इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर आपने इस फंक्शन को आप इस फंक्शन नॉर्मलाइजिंग फंक्शन के लिए क्या मान रहे हो कि i इज इक्वल टू k है, तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, आपकी 1 आ रही है। ये ध्यान में रखना। जैसे मान लो मैं एक यहाँ पे सिंक फंक्शन मैंने शेयर किया हुआ है आगे, सॉरी। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपली क्या किया है उसने, i माइनस के, आई इज इक्वल टू के पे वो p0 की वैल्यू 1 शो कर रहा है, इट मीन्स फॉर नॉर्मलाइजिंग फंक्शन के लिए, और i इज नॉट इक्वल टू के पे वो कुछ ना कुछ लाइक ISA को शो कर रहा है। क्लियर? ठीक है? तो अब उसने कुछ नहीं किया, जहाँ i माइनस के दैट इक्वल टू n पुट कर दिया, तो i माइनस के की जगह जब इक्वल टू n पुट होगा दैट इज बन जाएगा p एन टी पी। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे
कि अगर हमने जो हमें पी ऑफ टी मिला है उसको हमने टी इजिकल टू एन टी बी पे क्या किया है, उसकी सैम्पलिंग की है, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, पी ऑफ डेल ऑफ टी। क्लियर। और यू कैन डिनोट बाय योर, अगर लास्ट जो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, एस डेल ऑफ टी। इट मीन्स क्या होगा, आपका लास्ट जो आ रहा है लाइक उसमें अगर एज पर दी फिगर देखें तो यहाँ पे आपको y ऑफ t की वैल्यू जो है वो हमें लाइक यहाँ पे से 1 और से 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है। तो वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई की हुई है कि हमें जो आउटपुट y ऑफ t मिलेगी वो इसकी इनपुट पे अप्लाई हो जाएगी, इनटू में इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा इक्वल टू आउटपुट आ जाएगी आपकी होगी। क्लियर। तो वही पार्ट वो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है। अब उसने इस फंक्शन में कुछ नहीं किया, सिंपली दोबारा से फिर करती हूँ इसको एक बार, सॉरी। आपने लाइक क्या किया है, आप ये बोल रहे हो कि व्हेन i इज इक्वल टू k तो उसकी वैल्यू 1 आ रही है, और इसके अलावा क्या आ रही है, व्हेन i इज नॉट इक्वल टू k तो वो क्या ले रहा है, 0 ले रहा है। क्लियर। तो वही सेम चीज है कि जब आपकी जो फाइनल वैल्यू है, अगर आपने i इज इक्वल टू k लिया तो उसकी वैल्यू क्या आई है, 1 आई है फॉर दैट फंक्शन। क्लियर। और इस फंक्शन के लिए क्या आई है, i इज नॉट इक्वल टू k, दैट विल बी शो योर ISI। क्लियर। सो हेयर बस सिंपली i माइनस के को n से प्रेजेंट कर दिया, तो जब मैंने i माइनस के को n से प्रेजेंट करूंगी दैट विल बी शो बाय योर एनटीबी। तो एनटीबी बनेगा तो वही सेम है, अगर n इक्वल टू 0 तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, अगर 0 है तो n इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। तो हमने सिंपली उसको सैम्पलिंग में कन्वर्ट किया अभी ओनली विद द हेल्प ऑफ n। अब हमने उस आउटपुट को लास्ट लाइक फिल्टर को दिया, तो उसने जो उसका रिस्पॉन्स शो किया है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर पी डेल ऑफ टी। ठीक है। तो पी ऑफ डेल ऑफ टी की इनपुट पे क्या है, पी ऑफ टी, और लास्ट पे जो उसका ब्लॉक बना हुआ है दैट ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू योर एस डेल ऑफ टी। यू कैन से डिसीजन मेकिंग डिवाइस डिवाइस था वो, उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, एस डेल ऑफ टी। क्लियर। तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, अब हमें पता है कि अगर लाइक हमने क्या किया है, एस डेल ऑफ टी क्या है आपका जो आउटपुट पे मिला है, दैट इज शो बाय योर एस डेल ऑफ टी। You can say making at your decision making device output पे जो सिग्नल मिलेगा that will be represented by your S del of t. Clear. So that is equal to your n is equal to minus infinity del t minus k t b. Clear. तो अगर आपने ट्रांसमीटर साइज पे फिल्टर रिस्पॉन्स को डेल एन तो आपने सिंपली एस डेल ऑफ टी को क्या किया है, इम्पल्स फंक्शन की फॉर्म में लिखा है। ठीक है। तो आपने जो आउटपुट में मिल रहा है वो आपका पीटी के साथ मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है हेयर, पीटी इंटू में एस डेल ऑफ टी, और एस डेल ऑफ टी को क्या बोल रहे हो, आपको इम्पल्स फंक्शन बोल रहे हो। तो आपने जैसे ही इनपुट को इम्पल्स फंक्शन से मल्टीप्लाई किया था, अब आउटपुट को भी क्या करेंगे, इम्पल्स फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। किसके क्यों करने के लिए, फॉर रिकवर योर ओरिजिनल सिग्नल। तो मैंने क्या किया, आपके लाइक जो भी आउटपुट पे आ रहा था पी ऑफ टी उसको आपके इम्पल्स फंक्शन से मल्टीप्लाई किया है। तो फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, पीओ आउटपुट पे क्या मिल रहा है आपको, पी डेल ऑफ टी फाइनल आउटपुट एट योर डिसीजन मेकिंग डिवाइस। ठीक है। दैट इज इनटू योर पी ऑफ टी एन इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी डेल टी माइनस एन टी बी। क्लियर। अब हमने सैंपल करना है एट टी इज इक्वल टू टी बी पे, तो टी को जब मैंने एन टी बी में चेंज किया तो अंदर आ गया डेल टी माइनस एन टी बी। अब अगर मैं इसको फोरियर फंक्शन में लेती हूँ तो रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका इसी फंक्शन को, अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में अप्लाई करें दैट इज पी डेल ऑफ टी इज इक्वल टू पी डेल ऑफ टी ई रेज़ टू पावर माइनस जे टू पाई एफ टी इंटू में डी टी। क्लियर। तो हमने क्या किया, टी की जगह एन टी बी पुट करवाया। क्लियर। और डेल ऑफ टी ये सेम का सेम आ रहा है, इनटू में अगर मैंने इसकी वैल्यू को इक्वेट किया था दैट वैल्यू बी इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस जे टू पाई एफ टी इंटू में डी टी। तो दैट विल बी शो योर Nyquist criteria. आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे,
मैंने क्या किया है, आपने आउटपुट पे आपको पी डेल ऑफ टी मिल रहा है आफ्टर डिसीजन मेकिंग डिवाइस एज पर योर ब्लॉक डायग्राम। अब उस डिसीजन मेकिंग डिवाइस की जो आउटपुट पे मिल रहा है और उसकी जो इनपुट पे प्रेजेंट है उस पे आपने फिर से इम्पल्स फंक्शन अप्लाई किया। इट मीन जब भी आउटपुट मिलती है वो इम्पल्स फंक्शन के साथ क्या होके मिलती है, मल्टीप्लाई होके मिलती है। क्लियर? तो आपने अपने पी ऑफ टी को इम्पल्स फंक्शन से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे उसकी सैम्पलिंग की है एट पी टी इज इक्वल टू एन टी पी पे। तो टी को मैंने एन टी पी में चेंज किया, डेल ऑफ टी एंड माइनस जी बी। अब उस पर मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म को अप्लाई किया। तो अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करती हूँ तो पी डेल ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका, दैट इज इक्वल टू योर पी डेल ऑफ टी रेशो टू माइनस जे टू पाई एफ टी इंटू में डी टी। यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, इसके बराबर आ रही है। क्लियर? तो उसने कुछ नहीं किया यहाँ पे, उसने यहाँ पे उस वैल्यू को इक्वेट किया है, दैट इज पी एन ऑफ एन टी बी देन डेल ऑफ टी माइनस एन टी बी। क्लियर? इनटू में आपने ये वैल्यू इक्वेट की है यहाँ पे पी डेल ऑफ टी की, यहाँ ये वाली वैल्यू सिंपली इस फंक्शन को यहाँ पुट करवाया है। क्लियर? तो ये फंक्शन कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो t माइनस एन टी बी है दैट विल बी शो योर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर योर बेसबैंड ट्रांसमिशन। क्लियर? अब कैसे होगा, डेल ऑफ t इंटू में एच पावर जे टू पाई एफ टी इंटू में डी टी। तो ये क्या होता है, ये आपका लाइक फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है किसी भी इम्पल्स फंक्शन का। क्लियर? सो वही सेम कि दैट पी डेल ऑफ डेल ऑफ क्या है आपका 1 है, देन पी डेल ऑफ टी उस फ्रिक्वेंसी डोमेन को जब आपने टाइम डोमेन में चेंज किया तो पी ऑफ टी इंटू में एस ऑफ टी की सिंबल की फॉर्म में शो किया जाता है। क्लियर? तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्चुअल में हम जानते हैं कि पी डेल ऑफ टी आउटपुट पे जो हमें मिल रहा है दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ योर पी ऑफ टी इंटू में ट्रांसफर फंक्शन ऑफ योर लास्ट ब्लॉक एस डेल ऑफ टी। क्लियर? अब हमने उसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो वो हमारा हो जाएगा। मैं आपको फिर एक बार दोबारा फिगर दिखा देती हूँ। ये चीज ध्यान में रखना कि यहाँ हमें क्या मिल रहा है, दैट इज सॉरी वन टाइम आई रिपीट अगेन। यहाँ हमें मिल रहा है पी डेल ऑफ टी को क्या मिल रहा है, पी ऑफ टी इंटू में एस डेल ऑफ टी। ठीक है? पी ऑफ टी इंटू में एस डेल ऑफ टी। देखिए ध्यान से आउट ब्लॉक डायग्राम में पी डेल ऑफ टी जो हमें आउटपुट पे मिल रहा है दैट इज अगर हम यहाँ पी डेल ऑफ टी मान के चलें और उसकी इनपुट को माने पी ऑफ टी, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है पी डेल ऑफ टी और यहाँ क्या मिलेगा पी पी टी जो कि किससे मल्टीप्लाई होगा, आपके एक सी टी फंक्शन के साथ। क्लियर? तो इसका रिस्पॉन्स उसने किस फॉर्म में लिया हुआ है, सी टी की बजाय उसने लिया हुआ है एस डेल ऑफ टी से। क्लियर? तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे पी डेल ऑफ टी इज इक्वल टू एस डेल ऑफ टी इंटू में पीटी। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे आउटपुट को आपने पीटी की फॉर्म में निकाला था तो उस पीटी को ट्रांसमिशन में लेके आएंगे। तो पी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा, पी ऑफ टी इंटू में ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दीज देन पी ऑफ टी मल्टीप्लाई विद योर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सी टी यानी कि एस डेल ऑफ टी इज इक्वल टू पी डेल ऑफ टी। तो उसी फॉर्म में मैंने लास्ट में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो दैट शो योर रिसीवर फिल्टर रिस्पॉन्स। कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। तो आपने अभी ये लिखा है पी डेल ऑफ टी इज इक्वल टू पी टी इंटू में एस डेल ऑफ टी। पी टी जो है वो आपका जो आपने रिसीवर पे फिल्टर यूज किया है उसकी आउटपुट है, उसके आउटपुट पी डेल ऑफ टी है, उसकी इनपुट क्या है पी ऑफ टी है, इनटू में उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है एस डेल ऑफ टी। क्लियर? अब उसके टाइम डोमेन फंक्शन को अपने फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज किया तो पी डेल ऑफ एफ हो जाएगा पी एफ इंटू में एस डेल ऑफ एफ। क्लियर? तो पी एफ का पी एफ आ जाएगा और एस डेल ऑफ फंक्शन को जब आप सोल्व करके लिखोगे आपको पता है कि एस टी क्या होता है, दैट इज आपने पीछे भी शो किया हुआ है, दैट इज एन माइनस डेल ऑफ एन माइनस टीबी। आपने इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म में चेंज किया तो एफ एस बाहर आ गया, टेकिंग n इक्वल टू माइनस इनफिनिटी एफ एन माइनस एफ एस। आपने सिंपली एस ऑफ टी की वैल्यू यहाँ इक्वेट की है एस ऑफ डेल एफ की जगह। ठीक है? तो वैल्यू इक्वेट करने से आपको ये सेम चीज आ जाएगी यहाँ पे। देन क्या करेंगे आप,
अब आपने क्या किया, इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्लियर। तो आपने जब इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, दैट इज इक्वल टू योर एस डेल एफ एस बाहर आ गया, एफ माइनस एन एफ लिया। आपको ये भी पता है कि एफ एस क्या होता है, 1/TB होता है एज पर बिट ड्यूरेशन, लेकिन एफ एस को वो आरबी से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके फॉर्मूले में जहां भी एफ एस आ रहा है उसको आप किससे प्लेस करेंगे, आरबी से प्लेस करेंगे, क्लियर। तो जब आपने एफ एस को आरबी से प्लेस किया तो आरबी इंटू में क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू एफ माइनस में एन आर बी। सिंपली हमने जहां आपका एफ एस है उसकी जगह आरबी पुट करवाना है, एफ एस की जगह आरबी, तो यहाँ आरबी हो जाएगा माइनस एन एफ एस इंटू में आरबी, एफ एस की जगह आरबी। सो दिस नेगेटिव क्राइटेरिया फॉर distortionless transmission, so that is a getting a final value of output with distortionless transmission, clear. Again, you can come with the topic of your Nyquist criteria for distortionless transmission. Clear. So again, you can come the another topic. Clear. तो इस पार्ट में ध्यान से देखिए कि लाइक आपको again you can come with your ideal Nyquist channel raised cosine spectrum. So we learn in baseband transmission of pulses, and IC is the major problem which can be minimized by controlling the function of PT एंड ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। यानी कि अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में यही पढ़ा है कि अगर हमने अपनी आउटपुट जो हमने पीटी निकाली थी उसके अंदर आईएसआई और नॉइस का इफेक्ट कम करना है तो उसको हम रिमूव मान के चलेंगे और ओनली आइडल एलपीएफ का फिल्टर का जो रिस्पॉन्स आया है वही शो करेंगे। लेकिन एक्चुअल में आपका जो भी फिल्टर है वो कभी भी आइडल लो पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी फिल्टर आपका आइडल की तरह बिहेव नहीं करता, क्लियर। तो हमें अपने जो हमें एलपी फिल्टर का जो आपने एक रिस्पॉन्स बनाया था उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा। रेज मतलब कि उसके स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, सो दैट चेंज विल बी कॉल्ड योर रेज कोसाइन स्पेक्ट्रम, क्लियर। So for zero ISI Nyquist criteria for distortionless baseband transmission will be satisfied। तो आपने बोला था कि आपने जो फिल्टर होते हैं वो आपकी जो लाइक पैम से जो आउटपुट निकलती है उसको डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो वो शेप आपकी है तो उसको सिंक फंक्शन हो सकता है, कोई ट्रायंगुलर हो सकता है, कोई स्क्वायर हो सकता है। तो उसमें जो एक सिंक फंक्शन है वो आपके पीटी की जो आपने आउटपुट निकाली है, यानी कि फर्स्ट फंडामेंटल आया है, फिर एक आईएससी पार्ट आया है, फिर आपका नॉइज आया है। तो उसमें जो सिंक फंक्शन है वो तीनों प्रॉपर्टीज को आपको शो करता है। इसलिए मैंने पीटी की कैलकुलेशन में साइन और स्केयर लेने की बजाय कौन सा लिया है, सिंक फंक्शन लिया है। इट मीन सिंक फंक्शन एनालिसिस शुड बी बेस्ड एज पर योर प्रूव इन योर पीटी with your original plus your ISI and plus your noise, so that phenomena will be matched in your sync function। तो सिंक फंक्शन में भी हमें यही चीजें मिलती हैं, इसलिए मैंने पीटी को एक्सप्लेन करने के एग्जांपल में सिंक फंक्शन लिया है। तो सिंक फंक्शन विल बी रिप्रेजेंट एट 2 ओमेगा टी। तो हमें पता है कि हमारी Nyquist बैंडविड्थ क्या होती है, W इज इक्वल टू 1/2 TB, क्लियर, ठीक है। तो सिंक फंक्शन की बैंडविड्थ क्या होगी, 1/TB हो जाएगी, क्लियर। दिस इज द ओनली फंक्शन थ्रू विच वी गेट द आइडल सोल्यूशन फॉर Nyquist क्राइटेरिया, क्लियर। तो ये वाला जो सिंक फंक्शन है वो आपके आपने जो पहले प्रीव्यू किया है आइडल सोल्यूशन फॉर Nyquist क्राइटेरिया उसके ऊपर बिल्कुल सेट बैठता है, यानी कि इसका रिस्पॉन्स भी आपके आइडल ट्रांसमिशन जो आपने पहले निकाली है फॉर बेसबैंड ट्रांसमिशन और डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन उसकी तरह बिल्कुल सेट आती है। तो उसमें भी इसमें भी आप लाइक जो सिंक फंक्शन होता है आपने लिखा था P इज इक्वल टू T माइनस के TB, ठीक है। तो आपने K को ith बिट पे सैम्पलिंग की तो दैट इज K विल बी चेंज ITB, T माइनस के TB लिखते हो। देन T को आपने जब सैंपल किया एट ITB पे ith TB बिट ड्यूरेशन पे ith सैंपल एंड TB बिट ड्यूरेशन, देन T विल बी चेंज ITB। उसकी वैल्यू 1 होगी जब I इज इक्वल टू K होगा एंड 0 होगी जब I इज नॉट इक्वल टू K। तो इस सिंक फंक्शन का रिस्पॉन्स भी वैसे ही है कि जब I इज इक्वल टू K है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। लेकिन जब I इज नॉट इक्वल टू K है फ्रॉम ऑन दिस साइड, clear, so its value will not, its value is 0, here 0, here 0 and here 0। it means at A is equal to K its value will be 1, but when I is not equal to K in either in form of positive side or either in form of negative side, so that will be show here you can say 0, its value is 0,
आइदर 2 TB, TB एंड 3 TB पे। यानी कि जब आपका आई नॉट इक्वल टू के है तो उस केस में आपकी वैल्यू जो TB, 2 TB और 3 TB पे क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर। सो उसने वही फॉर्म बैंडविड्थ की फॉर्म में शो की हुई है। तो वो ये कह रहा है कि PF है उसकी बैंडविड्थ किस इक्वल आ रही है, 1/2W के इक्वल आ रही है। ठीक है, वो कब आ रही है, जब F की वैल्यू लेस देन W है। लेकिन अगर वो लेस देन W है तो 1/2W है, लेकिन अगर F की वैल्यू W से ज्यादा है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। क्लियर। सो आइडियल नाइक्विस्ट चैनल का जो रिस्पॉन्स है, जो हमने फर्स्ट पार्ट फंडामेंटल शो किया है, उससे आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है दैट इज इक्वल टू योर LPA फिल्टर। LPA फिल्टर का रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से शार्प कट ऑफ पे होता है। तो उसमें क्या होता है कि अप टू दैट पार्ट इट शुड बी ट्रांसमिट द डाटा, बट आफ्टर दिस इट विल बी रिमूव द डाटा, यानी कि आगे पास नहीं करेगा। तो इसकी बैंडविड्थ W हुई और इसकी भी W हुई, टोटल कितनी हो गई, 2W हो गई। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर लाइक हमने आइडियल रिस्पॉन्स करना है किसी भी ट्रांस लाइक चैनल का, तो कैसे शो होगा कि F इज लेस देन W, जब तक F की वैल्यू W से लेस है, यानी कि फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, इट्स वैल्यू इज टू 1/2W, दोनों को मिला के इस तरफ W है इस तरफ W, इतना बन जाएगी 1/2W। लेकिन 0 है जब F इज ग्रेटर देन W, लेकिन जब F की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इधर भी 0 है और इधर भी क्या आपका 0 है। सो ऑब्जर्व दैट द एरिया अंडर द कर्व, यानी कि जो एरिया इसके अंदर आ रहा है उसके लिए जो PF फंक्शन है वो क्या है, इसकी वैल्यू 1 है। क्लियर। सो अगर हम ये कहना चाहें कि अगर मैं PF पे मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन था P ऑफ टी, उस पे मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, दैट PF इंटू DF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, व्हेन क्या है आपका I इज इक्वल टू K है। तो इस केस में क्या होगा, आइडियल न्यूक्विस्ट चैनल क्या होगा, फॉर लो पास फिल्टर के लिए आपका ये वाला काम करेगा। अब हमने क्या किया, हमें जो मॉडिफाइड पैम सिग्नल मिला था, हमने इस टर्म में लिख रहे थे उस फाइनल फॉर्मूले को, उस फॉर्मूले में मैंने फिर से आगे नॉइज की टर्म नहीं लिखी है। अब मैं इसमें चेंजेस क्या करूंगी कि आपके एक एक को, क्योंकि आपने अभी बोला कि जो सिंक फंक्शन का रिस्पॉन्स है वो आपने जो आइडल रिस्पॉन्स प्रूव किया है फॉर योर बेसबैंड ट्रांसमिशन से उससे बिल्कुल मैच करता है। तो ए के इंटू में सिंक फंक्शन को मल्टीप्लाई किया, देन बैंडविड्थ कितनी है आपके 2W इंटू में T माइनस KTB आ जाएगा। क्लियर। तो अब हमने क्या किया, म्यू बाहर स्केलिंग फैक्टर रहने दिया, ए के सिंक फंक्शन इसको अंदर लेके गए तो यह क्या होगा 2WT 2WK TB। क्लियर। और हमें पता है कि W इजिकल टू क्या होता है 1/2TB। और अभी हमने ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं इस फंक्शन को उधर ले जाऊं W इंटू में 1/2TB, 2TB इजिकल टू क्या होता है आपका 1 होता है। इससे कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी तो इस फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, सो द टाइमिंग एरर del of t due to the inaccurate synchronization of the clock in the receiver sampling circuit। तो उसने बोला है कि कई बार जब हम सिंक फंक्शन को एज एन एग्जांपल की फॉर्म में अप्लाई करते हैं एज पर यूर डन द एनालिसिस ऑफ योर डिस्टॉर्शनलेस बेसबैंड ट्रांसमिशन, अगर हमने उससे उसकी वैल्यू को कंपेयर किया सिंक फंक्शन की वैल्यू को, तो मैंने अभी बोला कि उसका रिस्पॉन्स और उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल मैच करता है। लेकिन सम केसेस में क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का रिस्पॉन्स कितना भी सिंक्रोनाइज हो जाए, कितना भी हम उसको कंट्रोल कर लें, लेकिन तब भी वो क्या करता है, कोई ना कोई एरर शो करता है इन द फॉर्म ऑफ del of t। so that error will be occur due to the due to the effect of your you can say non inaccurate synchronization between the transmitter and receiver, you can say clock of the receiver sampling circuit। तो हम क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं किया, जहाँ पे आपका P of t है उसमें एरर फंक्शन को शो करने के लिए del of t ले लिया, अगेन ए के साइन सी, ए के साइन सी का साइन सी 2WT, W की जगह क्या शो कर दिया del of t माइनस में K। क्लियर। ये वाले फंक्शन में सिंपली del of t इक्वेट किया हमने। ठीक है, अब आप वही सेम जिस टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो टर्म नीचे आ जाती है एंगल की फॉर्म में, और फिर हम क्या करते हैं उसको पे साइन और कोसाइन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो साइन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, साइन 2W पाई डेल टी इंटू में कोस पाई के यानी कि साइन इंटू कोस माइनस कोस इंटू साइन। तो ये फॉर्मूला यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका एंगल जो सेम टर्म में नीचे आ जाता है, और यहाँ पे क्या होगा वो साइन इंटू कोस की फॉर्मूला बनेगा, तो ये किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा साइन 2W पाई del of t इंटू में कोस पाई के अगेन माइनस कोस
ये एंगल आ जाएगा इंटू में साइन पाई के। तो हमें पता है कि कोस पाई के क्या होता है -1 की के, एंड साइन पाई के क्या होता है 0 होता है। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, ओनली ये वाली बचेगी। तो इस वैल्यू के बाहर में क्या है ए के पाई 2 डेल ऑफ टी माइनस के, देन इस वैल्यू के क्या पुट करोगे -1 की के, वो बाहर आगे आ जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा साइन, और ये फंक्शन तो पूरा क्या हो गया आपका 0 हो गया। क्लियर। तो अब हमने क्या किया कि इसमें अब हमने इस पूरे पार्ट के अंदर एक बार व्हेन k इज इक्वल टू आई है वो वाली टर्म को अलग कर लिया, और जब k इज नॉट इक्वल टू आई है उसको अलग कर लिया। तो जब मैंने k इज इक्वल टू आई पुट किया तो आपका क्या हुआ, म्यू ऑफ a0 बनेगा अपॉन में पाए 2 डेल ऑफ t, जो भी बनेगा ये वाला, इनटू में कोई भी साइन फंक्शन आ जाएगा। क्लियर। और जब आपने i इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू k रखा तो ये आ गया आपका म्यू a के पाए 2 डेल ऑफ t माइनस के। क्लियर। सो इस फंक्शन को आपने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस फंक्शन में क्या चेंजेस अकर हुए हैं, तो अब आप क्या करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड योर डिजायर्ड सिग्नल। क्लियर। और दैट इज कॉल्ड योर टाइमिंग एरर। यानी कि अब यहाँ पे आपने इट मीन्स, हाँ, तो इससे क्या हुआ कि अभी भी आपका सिग्नल के अंदर जब आपने उस फंक्शन को साइन सिंक फंक्शन से इक्वेट किया है तब भी उसने कुछ ना कुछ टाइमिंग एरर शो की है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ डेल ऑफ टी। क्लियर। सो दैट टाइमिंग एरर इज अ मेन disadvantage of your you can say occur in your distortionless baseband transmission, so which reduces the और उसकी वजह से हमें दैट विल बी एक डिसएडवांटेज और है, वो क्या है, देयर विल बी शो नो मार्जिन फॉर सैम्पलिंग एरर। यानी कि इसमें जब सैम्पल एरर आ रहा है उसमें कोई मार्जिन नहीं है, मार्जिन में कोई स्पेस नहीं है जहाँ पे आके सैम्पलिंग एरर आपका फिट हो जाए और वो आपको आउटपुट पे ना मिले। क्लियर। तो कोई मार्जिन नहीं है, दैट इज अ ट्रू डिसएडवांटेज ऑफ योर distortionless baseband transmission, and that disadvantage will be overcome by एज वी नो दैट कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, एलपीएफ फैक्टर का ट्रांसफर, एलपीएफ फैक्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स शो कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, अभी भी क्या उसने क्या किया प्रूव कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है दैट विल बी शो योर डिजायर्ड सिग्नल, और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर अभी भी डेल ऑफ टी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल ऑफ टी है दैट विल बी शो योर टाइमिंग एरर। इट मींस अभी भी हमने टाइमिंग एरर को रिमूव नहीं कर पाए हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लाइक कोसाइन रे स्पेक्ट्रम अप्लाई करेंगे। वो भी आप ध्यान से देखिएगा। हमने अभी बोला किसी भी एलपीए फिल्टर का रिस्पॉन्स जो होता है वो लाइक इस वे से आता है। हमें पता है कि उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, 0 पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। लेकिन जब हमने उस W के प्लस पार्ट में और माइनस पार्ट में जब E को ऐड किया है, तो जब W प्लस E किया तो दैट इज इक्वल टू 0, लेकिन जब W माइनस ए किया है तो दैट इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही सेम अगर आप उसको माइनस की फॉर्म इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये वाला आया, लेकिन जब इस वे से अप्लाई करोगे दैट विल बी इक्वल टू माइनस W प्लस E इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा, अगेन माइनस W माइनस E इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब आपका जो स्पेक्ट्रम जो आइडियल फिल्टर का रिस्पॉन्स इस तरह से आ रहा है उसको आपने थोड़ा सा रेज किया है। उसको रेज करने का आपके जो सिग्नल की डिफिकल्टीज आ रही हैं आइडियल फिल्टर के अंदर, यानी कि उसने ये बोला था कि अभी भी उसके अंदर टाइमिंग एरर प्रेजेंट है, और आपका क्या है कि लाइक जो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस आ रही है उसके ऊपर कोई नॉइज मार्जिन नहीं है। तो उस नॉइज मार्जिन और प्लस उसके इफेक्ट को लाइक इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के इफेक्ट को रिमूव करने के लिए उसने क्या किया है, स्पेक्ट्रम को एलपीएफ फिल्टर में होने की बजाय इसको इसका रेज किया। क्लियर। तो रेज करने पे क्या होगा कि रेज करने से क्या होगा कि वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कि यहाँ पे वो 0 होगा, यहाँ पे F1 और यहाँ पे माइनस F1 अगेन इन द फॉर्म ऑफ विड्थ अप्लाई होगा, तो ये दैट इज 2W माइनस F है, और यहाँ पे 2W प्लस F1 हो जाएगा। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज कॉल्ड योर फ्लैट पोर्शन, और that flat portion is called your bandwidth. So in case of your cosine spectrum, your bandwidth will be in between your W and 2W. Clear. So practically reliable. So the modified Nyquist filter is called a raised cosine roll of Nyquist filter. तो हमें जो इसका रिस्पॉन्स मिला है कुछ फ्लैट में मिला है और कुछ किस में मिला है, रेज्ड, तो दैट इज पार्ट योर रेज ऑफ पार्ट, वही सेम लिख रखा है। सो दैट पार्ट इज कॉल्ड योर रेज ऑफ पार्ट, रोल ऑफ पार्ट। ठीक है। अब उसने बोला हुआ है कि अगर हम उसको लिखें ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में, तो आपको पीटी को आपने पीएफ में चेंज किया,
उसके बाद आपने क्या किया है, लाइक जब तक उसका फिल्टर F1 तक वो फ्लैट रिस्पॉन्स शो कर रहा है, अगर वो फ्लैट रिस्पॉन्स शो कर रहा है तो उसकी वैल्यू बैंडविड्थ क्या है, 1/2 ओमेगा। क्लियर। लेकिन उसके बाद जब कर्व उसकी टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज कर रही है, उस पे उसकी वैल्यू क्या है, 1/4 ओमेगा, और दैट फंक्शन विल बी 1 माइनस साइन पी एफ माइनस ओमेगा अपॉन में 2 ओमेगा माइनस में 2f। क्लियर। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि जब वो s से लेकर 2 ओमेगा f1 के बीच में है, यानी कि यहाँ f1 से लेकर 2 ओमेगा माइनस f1 के बीच में है, तो वो क्या शो कर रहा है, आपका कोसाइन स्पेक्ट्रम शो कर रहा है, और यू कैन से रेज्ड स्पेक्ट्रम शो कर रहा है। क्लियर। और इसके अलावा जब वो f से बड़ा है तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। सो अगर हम लाइक उस केस में जब हमने रे स्पेक्ट्रम निकाला है, अगर हमने रे स्पेक्ट्रम के बिना हमने आइडल फिल्टर को फॉलो किया था तो उसमें हमारी बैंडविड्थ आ रही थी 1/2w। क्लियर। लेकिन जब हमने रे स्पेक्ट्रम चेंज किया तो बैंडविड्थ में कुछ चेंज हुआ, दैट इज 2w माइनस में f। और हमें पता है कि हमारा f क्या है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। क्लियर। तो हमने इस वैल्यू में 2w माइनस w क्या, w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। क्लियर। तो अब हमने इस वैल्यू में अपने कुछ वैल्यू को इक्वेट किया है और उसका स्पेक्ट्रम कैसे आया वो देखेंगे, कि जब मैंने उस अल्फा की वैल्यू 0 रखी तो आपका पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, w के इक्वल आएगा। ठीक है। when अल्फा इज इक्वल टू 0 आपकी बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी, w आ जाएगी। लेकिन जब अल्फा की वैल्यू आप 0.5 रखोगे तो दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू में w हो जाएगा। क्लियर। और जब आपने अल्फा की वैल्यू 0.5 रखी तो वो और भी कम आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब आपने अल्फा की वैल्यू 1 रखी है तो शार्प कट ऑफ पीक मिला है, और जैसे जैसे 1 से उसकी वैल्यू कम करते गए उसका फ्रिक्वेंसी का रिस्पॉन्स किस में चेंज होता गया, फ्लैट शेप में चेंज होता गया। तो अल्फा इज इक्वल टू 0 पे क्या है, वो दैट विल बी फॉलो योर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर योर बेसबैंड ट्रांसमिशन। क्लियर। अब हमने उस पे लाइक पी ऑफ टी के ऊपर हमने लाइक आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई की है, रेस को स्पेक्ट्रम की फॉर्म में जो आपको आउटपुट मिल रही है ये वाली, इस पे आपने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई की है। आफ्टर अप्लाई द यानी कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यू कैन गेटिंग द रिस्पांस लाइक दिस। सो आल्सो वी कैन से दैट कि जो सिंक फंक्शन है वो आपका 0 पे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। किसी सिंक फंक्शन में आप जब i इज इक्वल टू k रखोगे तो आपका वो आइडियल चैनल का रिस्पॉन्स शो करेगा। तो उस केस में आप ये भी देखेंगे कि सिंक फंक्शन जो है वो आपका पीटी जो है सिंक फंक्शन के रिमूव से रुका रहेगा। तो उसने क्या किया, सिंपली जो आपकी टर्म 1/4 ओमेगा की फॉर्म में आ रही है, दैट इज इस पार्ट के ऊपर उसने इनवर्स, क्योंकि हमने ये हमें पता है कि 0 से लेकर f1 तक उसका रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स क्या है, फ्लैट है। यहाँ से f1 से 2w f1 तक उसका रिस्पॉन्स क्या है, रेस कोसाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में आ रहा है। तो उसकी वैल्यू मैंने लिखी है, उस वैल्यू के ऊपर मैंने इनवर्स टेकिंग ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो वैल्यू ये वाली आ जाएगी। क्लियर। सो दैट वैल्यू विल बी शो बाय योर कि देखो अब उसने नंबर ऑफ अभी इस पार्ट में देखो कि जब उसने उस पर अप्लाई किया तो टी स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो क्या होगा, तो हमने जब उसकी एनालिसिस की तो देखो ये जो लाइक 0 पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। जब आई इक्वल टू किया तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है सिंक फंक्शन की। और जो सिंक फंक्शन है वो जब आई इज नॉट इक्वल टू किया है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, टीबी पे 2 टीबी की आ रही है, 0 आ रही है। लेकिन इस पे वो कुछ ना कुछ देखो यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है वो टी स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है यहाँ पे। क्लियर। टी स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एरर है वो और भी टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जो टाइमिंग एरर आ रहा था वो और भी क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ योर सिंपल ट्रांसमिशन के फॉर्म में वो आपका टाइमिंग एरर की वजह से जो एरर आ रहा था वो भी यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर आपका बेस पावर बन रही है। क्लियर। तो इसमें क्या किया हमने, हमें पता है कि सैम्पलिंग टाइम एरर जो होता है वो हमारा होता है साइन पाई टू डेल ऑफ टी पाई अपॉन में पाई टू डेल ऑफ टी। क्लियर। तो जब मैंने इस पार्ट को लाइक एक्सपेंड किया तो ये पार्ट के अंदर लाइक हमारा इस पार्ट को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें लाइक यहाँ पे जैसे मान लो डेल ऑफ टी, यानी कि अगर मैं इस पार्ट के अंदर
टी की जगह डेल टी स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो हमें कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर पे आएगा डेल डेल टी क्यूब आ जाएगा। अगर डेल टी क्यूब आ रहा है तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, टाइमिंग एरियर मोर स्पीड से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जो कि क्या आती है आपकी सिंपल बैंडविड्थ क्राइटेरिया में एक डिसएडवांटेज थी कि टाइमिंग एरर था, लेकिन वो बहुत कम स्पीड से रिड्यूस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो ज्यादा स्पीड से रिड्यूस होगा जब आपने टी को डेल ऑफ टी से चेंज कर दिया। क्लियर। सो हमें पता है कि हमारी बैंडविड्थ क्या होती है, इसका मतलब बैंडविड्थ क्या हुई, W+1 अल्फा, तो दैट शो योर एक्स्ट्रा बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर रेस कोसाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर। अगेन नेक्विस्ट क्राइटेरिया निकालना है, तो एक्सेस बैंडविड्थ बाय में नेक्विस्ट बैंडविड्थ, एक्सेस बैंडविड्थ क्या आई है, W अल्फा अपन में नाइक्विस्ट की बैंडविड्थ क्या होती है W, तो आपकी क्या आ जाएगी, अल्फा आ जाएगी। सो रोलो फैक्टर अल्फा इज कॉल्ड योर एक्सेस बैंडविड्थ फैक्टर, तो ये जो अल्फा है दैट इज कॉल्ड योर एक्सेस बैंडविड्थ फैक्टर, दैट पार्ट। सो आई विल शो योर वेरियस एनालिसिस एज पर योर कोसाइन। बस उसने क्या किया है कि पहले उसने लाइक एज पर योर प्रीवियस एनालिसिस के अंदर आपने 3 पार्ट्स की फॉर्म में आउटपुट निकाली थी। उस पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट था वो आपका विदाउट नॉइज और विदाउट डिस्टॉर्शन की वजह से जो आइडियल रिस्पॉन्स आ रहा है, आई व्हेन आई इज इक्वल टू के, तो उस पे वो आपका फंडामेंटल का पार्ट शो हो रहा है। व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू के दैट विल बी शो योर यू कैन से व्हेन यू एट द सिग्नल कम बी इफेक्ट इन योर इंटर सिंबल इंटरफेरेंस एंड द लास्ट पार्ट एंटी विल बी शो योर नॉइज। तो इस केस में भी आपका टाइमिंग एरर प्रेजेंट ही था, आपने कुछ भी एनालिसिस करके उसको सोल्व करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या है, टाइमिंग एरर प्रेजेंट है। तो टाइमिंग एरर को रिमूव करने के लिए हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा था आपके सिंपल बेसबैंड ट्रांसमिशन में, वो एलपीएफ के कर्व को फॉलो कर रहा था। तो हमने उसमें कुछ चेंजेस लाके उसके स्पेक्ट्रम को क्या किया, एलपीएफ से इसके स्पेक्ट्रम को रे स्पेक्ट्रम में चेंज किया। ठीक है, तो जब उसका जो स्पेक्ट्रम है वो रे स्पेक्ट्रम की तरह से आएगा, तो उसका रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, मच बेटर एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस एलपीएफ फिल्टर ट्रांसमिशन। So that topic is very important for you as per your exam point of view. So thank you very much for listening my lecture. Thank you so much. अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर आपको हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप से सिंप्लीफाई करिए जैसे मैंने करवाया है। उसके बाद आप उसको थोड़ा रिव्यू कीजिए तो आपको ये सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।